दो इन 22 को आप पे करेंगे या नहीं करेंगे ये बताओ। करेंगे सर, कब करेंगे? ये ऑर्डर कब करेंगे? समय हैं? थोड़ा समय चाहिए। कितना समय चाहिए आपको? 5 साल से ऊपर तो मिल गया समय। ऑर्डर मनवाने के लिए तो फिर कोर्ट को ही आगे आना पड़ेगा। अपने ऑर्डर को फोर्सफुली कंप्लाई विद कराने के लिए कोर्ट की जिम्मेवारी है एग्जीक्यूशन की। आपने तो करना नहीं, हम करते हैं फिर फोर्सफुली कैसे एग्जीक्यूट होते हैं ऑर्डर्स। कोर्ट इज नॉट हेल्पलेस। रिक्वेस्ट तो कितने साल से रिक्वेस्ट चल रही है आपकी? 2018 से आप इनको रिलीफ नहीं दे रहे सर, ये दूसरों को दे दिए। ये गिड़गिड़ाने की बात होती है। स्टेट का मतलब गिड़गिड़ाना है कोर्ट में? तौहीन नहीं हो रही आपके ऑफिस की? इन एवरी केस स्टेट इज मर्मरिंग लाइक दिस। This is a contempt petition, and it relates to one of the grant of benefit of fifth pay commission. The petitioner, this association is one of the institutions which are under the tribal development department of the state government, and they are receiving grant in 100% grant from the state government. Now, the earlier there was a direction passed by this honorable court. The writ petition was filed, and the direction was that annexure C1 is the page 6. In fact, they have extended the benefit to all the members of this association except these 22 employees. My lord should kindly have a look on annexure C1, my lord, page 6. And if my lord should kindly come to page 7. Yeah, this is the order passed. My lord, this was the order passed. My lord, in compliance of this, they have granted the benefit of fifth pay commission to all the members of this association. This petition was filed by the association. My lord, this was filed by association. So how many members are there in this association? One of the there were about 3,000 members who have all been extended that benefit, except these 22 employees. 22 employees are Left. contempt petition only. My lord. Otherwise, they have implemented. They have implemented. My lord, they earlier my lord excluded 98 employees. If my lords may kindly have a look on the IA 5751. Yes. My lord, in this I have stated, my lord, that they had earlier left 98 employees. Now, in respect of 76 employees, they passed an order separately, and that order is placed on record as Now, how many are left? 22. 22 only. And their compliance report is suggestive of the fact that they have already complied with. Yes, they say that it has been. Yes, who is this for the state? The reply was filed on behalf of respondent number 3. 3 only. 3 reply says that answering respondent submits that in compliance of the order passed by the court, claim of the members of the petitioner has been examined in terms of law laid down by the apex court Suresh Kumar this case, and fifth phase has been sanctioned to the employees working in private aided institutions. So you have complied with, according to you. There is a letter, my lord. It is 18/3/2024, which I have been received just now. May I read it? 18th? 18/3/24. What is this letter? I have received just now. हाँ तो कंटेम्प्ट लग रही है, तो अभी रिसीव करेंगे आप? अभी क्यों? तो जस्ट 11th आवर पे भी करेंगे। पता है मेरे को क्या 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 फरमान दिया उन्होंने। अब मानना है क्रमांक 2929/2019 प्रशासकीय अनुदान प्रदान अधीन जाति अनुसूचित जाति शिक्षक एवं कर्मचारी संघ विरुद्ध श्रीमती दीपाली रस्तोगी प्रमुख सचिव संभागीय आयुक्त वेरीड दी कंटेंट्स ऑफ द लेटर। आप ये कंप्लाई विद हुआ है कि नहीं हुआ 22 आदमियों के प्रति? आप ये बताओ हार नाम है। अदरवाइज क्लियर केस ऑफ कंटेम्प्ट इज मेड आउट। एक झूठा एफिडेविट दिया उन्होंने कि वी हैव ऑलरेडी कंप्लाइड विद in this compliance report filed by respondent number 3. The false affidavit ultimately by saying in para number 3 that they have sanctioned this benefit of fifth pay scale to the employees working in private aided institutions. What's about these 22 employees? Have you sanctioned? But they have said अपर नियुक्ति मानते हुए पारित निर्णय दिनांक 15/1/2018 में शेष 22 कर्मचारियों को प्रचलित विभागीय व्यवस्था अनुसार शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्ति मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय प्रचलित अपील स्वयं के अधीन रखते हुए 5वां वेतनमान दिनांक 1/7/2018 से प्रदान किया गया है। 22 को दे दिया है? 22 कर्मचारियों इन्हीं 22 को जो लेफ्ट आउट है दे दिया ना? आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ये? Whatever is recited in this letter, this benefit has been accorded to 22 remaining employees. And his grievance is that these remaining 22 employees have not received the benefit of fifth pay commission so far. This one more line, जिसके स्थगन निरस्त हो जाने से शासन आदेश दिनांक 3/2/2020 अनुसार 22 कर्मचारियों को 5वां वेतनमान दिनांक 1/7/18 के प्रदान किए जाने संबंध कार्रवाई प्रचलन में। यहाँ लिखता है प्रचलन में।
वो तो रहेगी प्रचलन में। पत्र दिनांक 16 द्वारा उक्त अवमानना याचिका दिस फॉर कंटेम्प्टेशन में आपको संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है अतः शासन आदेश दिनांक 3/2/2020 अनुसार की जा रही कार्रवाई से माननीय न्यायालय को शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से अवगत क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या कार्रवाई की है? voice is present हैं? voice is present if I may be allowed आओ जी ऑफिसर इन कमांड, कम आओ आओ आओ, आगे आओ। क्या क्या हुक्म लाए हो, फरमान आपके साहब का यहाँ? सर इसमें जो 22 जो बचे हुए थे उनमें से कुछ लोगों ने इसमें पिटीशन लगाई थी इस ऑर्डर के खिलाफ यही तो है कंटेम्प्ट। 3/2/2020 में। तो इनकी WP पे इनको स्टे मिली, इस ऑर्डर पे स्टे मिला था, फिर बाद में ये डिसमिस हो गई है। ये किसने लगाई थी वो पिटीशन? जी किसने फाइल की थी वो? ये पिटिशनर्स ने लगाई थी सर। ये कौन सी रिट थी, कौन सी पिटीशन लगी थी? सर इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। 49/52/2020, 49/49/2020, 48/64/2020, 56/96/2020। ये 22 आदमियों लगाई थी, 22 आदमियों के अंदर से लगी थी क्या ये? जी क्या है मिस्टर? इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं सर। तो याचिका खारिज का पालन नहीं हो सका था और ये 18/10/2000 को फिर एक याचिका खारिज हो गई। इनके स्थगन हो जाने से शासन आदेश 3/2/2020 अनुसार 22 कर्मचारी को 5वां वेतनमान दिनांक 1/7/2018 से प्रदान किए जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। 18 की कार्रवाई प्रचलन में है, ये 22 के लिए सर। और नहीं ये 22 को फिफ्थ पे कमीशन का बेनिफिट देने के लिए कार्रवाई 2018 से प्रचलन में है। वो अभी तक 5 साल हो गए इनको। उसके आगे भी पढ़ दीजिए, उसमें लिखा है, इनको कहा है कि आप संपर्क अधिकारी के रूप में आपको, अब ये 2000 ये कंटेम्प्ट 2019 का है। ये लेटर सर अभी जो है 18 मार्च को जारी हुआ है, जिसमें ये कहते हैं कि आपको संपर्क अधिकारी बनाया जाता है और ये कार्रवाई प्रचलन में है। दिस इज द कंप्लायंस। और जो अन्य जो कर्मचारी थे उनको अपन 3 किस्त ऑलरेडी उनको पे कर चुके हैं। 2 इन 22 को आप पे करेंगे या नहीं करेंगे ये बताओ? करेंगे सर। कब करेंगे? ये ऑर्डर कब करेंगे? समय हैं? थोड़ा समय चाहिए कितना समय चाहिए आपको? 5 साल से ऊपर तो मिल गया समय। सर। Why these petitions were filed? Well, what had happened? They said that earlier they said that these 98 employees they were appointed after 1996. Therefore, they said that this benefit cannot be extended to them because they are appointed after 1996. Subsequently, Including 22. including these 22. Subsequently, my lord, they extended Out this. of 96, minus 22 they have granted. Yes, after that, my lord, this IA which I have filed, by this, my lord, they granted the benefit to 76 employees. When? That benefit was extended to them by order dated 10 January 2018. 10th January 2000. 2018. Why these 22 were left? These 22, my lord, for the reasons best known to them, they left them. Then, my lord, since they were not even being paid the benefit of fourth pay commission, so they filed a writ petition before this court. Fourth pay commission or fifth? पहले सर फोर्थ भी नहीं दे रहे थे इनको, तो वो जो पिटीशन थी वो फोर्थ के लिए थी कि साहब फोर्थ में भी इन्होंने उनका सैलरी रिड्यूस कर दिया था। Whether fourth pay commission benefit was released? Yes, that has been released. And fifth was? Fifth has not been given. इनका ये कहना ये कि साहब हम 2018 से देंगे, ये भी गलत है, क्योंकि 2018 से क्यों देंगे उनको? तो जैसे सबको मिला 1/1/96 से 1/1/96 से मिलेगा, पर ये इसको कंप्लाई तो करें पहले, फिर उसमें देखेंगे सर ये क्या देते। Comply तो ऐसे नहीं होता ना जी, हाँ, sir. this has become chronic exercise Yes, for the absolutely correct. state now, Absolutely. not to honor the court's order. ऑर्डर मनवाने के लिए तो फिर कोर्ट को ही आगे आना पड़ेगा। 4 weeks। अपने ऑर्डर को फोर्सफुली कंप्लाई विद कराने के लिए कोर्ट की जिम्मेवारी है एग्जीक्यूशन की। आपने तो करना नहीं, हम करते हैं फिर फोर्सफुली। कैसे एग्जीक्यूट होते हैं ऑर्डर्स? कोर्ट इज नॉट हेल्पलेस। रिक्वेस्ट तो कितने साल से रिक्वेस्ट चल रही है आपकी? 2018 से आप इनको रिलीफ नहीं दे रहे, सर ये दूसरों को दे दिए। व्हाट इज योर पॉसिबल डिफेंस? कौन है ये ऑफिसर? सर कमिश्नर और PS एक्चुअली फिर क्या हो गया? कमिश्नर इंप्लीमेंट तो कोर्ट ऑर्डर होने, ही में भी एनीथिंग। कमिश्नर है तो वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कोर्ट के ऑर्डर। क्या नाम है इनका? वर्तमान में जो कमिश्नर है डॉक्टर E रमेश राजा है। PS जो है उनको बुला लेते हैं यहाँ, उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं प्रवचन। कंप्लायंस नाउ ये गिड़गिड़ाने की बात होती है। स्टेट का मतलब गिड़गिड़ाना है कोर्ट में? तौहीन नहीं हो रही आपके ऑफिस की? इन एवरी केस स्टेट इज मर्मरिंग लाइक दिस। क्या नाम आपका? विनय सिंह है? विनय सिंह। क्या मैसेज लाए हैं कोर्ट में आप? ये आपने इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है? कब करना है? 4 weeks। अब 4 weeks हो गए। ये आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है और कंप्लाई करके ले आना। अदरवाइज आई नो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्डर आई वुड पास ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। 7 days, come what may. I know what type of order should be passed thereafter.
क्या लिख रहे हैं अंडरटेकिंग आपकी? 7 दिन में कंप्लाई विद करेंगे नहीं करेंगे? कंप्लाई शासन को करना था हाँ तो आप तो फिर अपॉइंट होके आइए ना आप, सर। मैं एक्चुअली विधि देखता हूँ यहाँ पे, हैं? डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लीगल सेल देखता हूँ। हाँ तो लीगल सेल से रिलेटेड है ये। लीगल सेल का मतलब ये थोड़ी कि लाइजनिंग होगी यहाँ। डेट आपके काम डेट लेना थोड़ी है, कोर्ट को असिस्ट करना है। क्या जिम्मेवारी है लगाई आपकी कोर्ट में? कमिश्नर में भी Officers are there from the AG office who can represent the state. What for you are here?